ابھی آپ کو بتائیں کہ چلڈرن ہسپتال کے گٹر میں گر کر بچے کی ہلاکت کا یہ معاملہ ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے بڑے عہدیداروں کو عام معافی دے دی۔ 4 چھوٹے ملازمین کو بچے کی ہلاکت کے ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے معطل کر دیا۔ سینیٹری سپروائزر کی جانب سے گٹر کا ڈھکن لگانے کا خط بھی لکھا گیا اور خط لکھنے کے باوجود بڑے عہدیداروں کا انکوائری میں نام گول کر دیا گیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں سجاد حسین سے۔ سجاد، اپڈیٹ کیجئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل جی، چلڈرن ہاسپٹل لاہور کے گٹر میں گر کر بچے کی ہلاکت کا معاملہ ہے اور انکوائری کمیٹی نے آج جو ہے رپورٹ پیش کر دی ہے۔ رپورٹ پیش کرنے کے بعد محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے بڑے عہدیداروں کو جو ہے وہ تقریباً عام معافی دے دی ہے، کیونکہ کسی بھی بڑے کے خلاف جو ہے کسی قسم کی کارروائی سامنے نہیں آئی ہے۔ بچے کی ہلاکت کے ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے 4 چھوٹے ملازمین کو جو ہے وہ پیٹا ایکٹ کے تحت معطل کر دیا گیا ہے۔ چاروں ملازمین کو پیٹا ایکٹ 2006 کے مطابق نوکری سے معطل کیا گیا ہے۔ سینٹری سپروائزر فیصل عطا اور سب انجینئر فرقان جویر معطل کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سیور مین وارث مسیح اور موٹی مسیح کو جو ہے وہ معطل کیا گیا ہے۔ سینٹری سپروائزر کی جانب سے گٹر کا ڈھکن لگانے کا لیٹر بھی لکھا گیا تھا، اس کے باوجود جو ہے اسے معطل کر دیا گیا ہے۔ لیٹر لکھنے کے باوجود بڑے عہدیداروں کو انکوائری میں ان کا نام جو ہے وہ گول کر دیا گیا ہے۔ ڈی ایم ایس مینٹیننس، اے ایم ایس مینٹیننس، اے ایم ایس کوارڈینیشن، اس میں کسی قسم کے بڑے جو ایڈیشنل ایم ایس اور ڈی ایم ایس ہے ان کا نام سامنے نہیں آیا ہے، اور چھوٹے ملازمین کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بناتے ہوئے بچے کے قتل کا، موت کا جو ہے وہ ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ دوسری جانب مرنے والے بچے باسم کے والد اخلاق نے متعلقہ تھانے میں درخواست دی ہے، جس پر ان بڑوں کے خلاف تاحال کسی قسم کا مقدمہ درج نہیں ہوا ہے۔ جی تاحال کسی بھی قسم کا کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ سجاد اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اسموگ میں کمی، شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 196 ریکارڈ کیا گیا۔ پولو گراؤنڈ کین کے علاقے کا AQI 234 رہا۔ گلبرگ کے علاقے میں فضائی آلودگی کی شرح 225 تک جا پہنچی۔ سید مراتب علی روڈ کے علاقے کا AQI 202 ریکارڈ کیا گیا، اور اسی پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے ہیں شاہزیب شہزاد۔ جی بالکل، اگر لاہور کی آلودگی کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں واضح کمی آئی ہے، اور لاہور شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 196 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ آپ کو بتاؤں کہ پولو گراؤنڈ کینٹ کا علاقہ سر فہرست ہے جہاں پہ AQI 234 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح بات کر لیجئے گلبرگ کی تو وہاں پہ AQI 225 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دیگر علاقوں میں جس میں سید مراتب علی روڈ شامل ہے وہاں پہ ایئر کوالٹی انڈیکس 202 تک جا پہنچا ہے، جبکہ آپ کو بتاؤں کہ شملہ پہاڑی کے علاقے میں AQI 199 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ولنشیا کے علاقے میں ایئر کوالٹی انڈیکس 219 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ شہریوں کے لیے ابھی بھی ہدایات ہیں کہ وہ ماسک کا استعمال کرتے رہیں، کیونکہ لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس پہ یقین کرنا بھی جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ اس میں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ نے ماضی میں دیکھا کہ لاہور کا AQI جو تھا وہ 1300-1400 تک جا پہنچا تھا، اور اس کے بعد جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس کے باعث اس میں کمی آئی تھی، اور یہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ کم ہو کر جو ہے وہ فضا صاف ہو گئی تھی۔ اس آلودگی کے باعث جو ہوا میں جو زہریلا مادہ موجود ہے اس کے باعث سینکڑوں مریض ہسپتالوں میں رپورٹ ہوئے جن کی آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری تھی، لیکن اب یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لاہور کے جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس میں واضح کمی آئی ہے اور وہ 196 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جی شکریہ۔ شہر میں تجاوزات کے خلاف ضلعی حکومت کی کوشش بھی بازاروں اور فوڈ سٹریٹ کے فٹ پاتھ کلیئر نہ کروا سکی۔ پرانی انارکلی فوڈ سٹریٹ کے فٹ پاتھ پر کئی فٹ تک تجاوزات قائم ہیں، اور اسی بارے میں مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد علی۔ جی، شہر لاہور میں تجاوزات کے حوالے سے ضلعی حکومت کو جو وزیر اعلیٰ نے احکامات جاری کیے ہیں اس کے مطابق لاہور کے متعدد بازار، GT روڈز، اس کے علاوہ گلیاں اور بالخصوص جتنے بھی مال روڈ کے اطراف کے علاقے ہیں ان کو کلیئر کروانے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے تھے، جس کے مطابق گزشتہ 15 دن روز سے یہ آپریشن جاری تھا۔ کچھ ایریا کلیئر ہوا۔ میں اس وقت موجود ہوں لاہور کی فوڈ سٹریٹ انارکلی کے اندر، جہاں پہ کچھ تجاوزات تھیں وہ ہٹائی گئی، لیکن دوبارہ پھر جون سی ہیں وہ جو سٹالز لگے ہوئے ہیں وہ تاحال ویسے کے ویسے موجود ہیں۔ اس پر ضلعی حکومت کی جانب سے متعدد بار آپریشن کیا جاتا ہے، ان کو وارننگ بھی دی جاتی ہے، جرمانے کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد
दोबारा फिर ये लोग इसी तरह स्टॉल्स लगाते हैं। बिलाल आपको कैमरामैन दिखाएगा कि पिछली साइड पे मेरे बिल्कुल लाहौर का इलाका है, नारकली फूड स्ट्रीट है, जो दोनों तरफ से जो पैदल चलने वाले अफराद हैं उनके लिए मुश्किलात ये हैं कि जगह बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला फोकस था वज़ीर-ए-आला पंजाब का कि लाहौर में पैदल चलने के लिए फुटपाथ क्लियर होने चाहिए। लाहौर के अनारकली को क्लियर करवाया गया, ओल्ड अनारकली बाजार जिसमें मैं मौजूद हूँ इसको क्लियर करवाया गया, लेकिन फिर कुछ रोज बाद दोबारा फिर तजावजा जो हैं वो अपनी जगह पर फुटपाथ का हाल क्लियर नहीं हो सके। वजह यह है कि जी ज़िले हुकूमत ने जो टीमें तश्कील दी गई हैं उन टीमों के मुताबिक तो यहाँ पे ऑपरेशन होता है, इनको फाइन भी किया जाता है, लेकिन लोगों ने अपना रोजगार भी कमाना है। लोग इस हवाले से क्योंकि जैसे शाम पड़ती है उसके बाद जो फुटपाथ हैं वहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, जिसे ज़िले हुकूमत ने मना किया हुआ है, इसकी वार्निंग भी जारी की गई। जबकि लाहौर में सेक्शन 144 का जो नफाज है लाहौर समेत वो भी उस पर भी अमल दरामद करवाने के हवाले से, क्योंकि ये तजावजात भी उसी मद में आती हैं और इनके खिलाफ ऑपरेशन भी हर तरह से का किया जाता है और कोशिश की जाती है कि लाहौर के पाथ क्लियर हों ताकि पैदल चलने वाले अफराद जिनसे हैं वो आसानी से गुजर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीकी ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि लॉन्चिंग से अब तक प्रोग्राम के तहत 800 बच्चों की कामयाब सर्जरीज हो चुकी हैं। प्रोग्राम के तहत चिल्ड्रन हस्पताल की सलाहियत में भी इजाफा किया जा रहा है। आपको अपडेट करते चलें अहम इजलास के बारे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर्स चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि लॉन्चिंग से अब तक प्रोग्राम के तहत 800 बच्चों की कामयाब सर्जरीज भी हो चुकी हैं, जबकि प्रोग्राम के तहत चिल्ड्रन हस्पतालों की सलाहियत में भी इजाफा किया जा रहा है। अवाम ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। बुशरा बीबी लोगों को मुल्क के खिलाफ उकसा रही हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के अपने बच्चे कहाँ हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मज़ीद कहा कि मुजाहरे के दौरान कांस्टेबल मुबशर शहीद हो गया और मुजाहरे में 70 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हैं। एहतजाज में PTI शरपसंदों ने गाड़ियों को आग लगा दी। एक तरफ रियासत पर हमला जबकि दूसरी तरफ मुज़ाकरात का कह रहे हैं। अभी रिसेंट अभी मुझे आने से 1 मिनट पहले ख़बर मिली है, हमारा एक कांस्टेबल मुबशर, उसका नाम है मुजफ्फरगढ़ का, उस बच्चे की जान जो है वो चली गई है। अब जो लोग इनको पुरअमन कहते हैं, जो लोग इनको सियासी जमात कहते हैं और जो लोग हमेशा इनके लिए प्लीड करते हैं कि इनको एहतजाज का हक़ दिया जाए, मेरा उनसे सवाल है कि पिछली दफ़ा भी एक जो इस्लामाबाद के पुलिस एहलकार हैं वो शहीद हुए थे। ये मुबशर बच्चा जो है ये आज ये शहीद हुआ है। बहुत अभी 5 के करीब लोग ऐसे हैं जो मज़ीद क्रिटिकल हैं, जिसके अंदर इस वक्त मजमूई तौर पर 70 पुलिस एहलकार हैं शदीद इंजर्ड है। ये हालत है आपकी और आप फिर उसके अंदर तड़का लगाती हैं मज़हब का। आप उकसा रही हैं लोगों को। आपके बेटे कहाँ हैं? चले यहाँ वो पाकिस्तान में नहीं आ सकते। बैरूने मुल्क एहतजाज हुए, जिन बेटों को अपने बाप की परवाह नहीं है उन दूसरों के बच्चे मरवा रही हैं आप उनको उकसा रही हैं। और ये जो पुलिस वाला जो मार रहे हैं आप लोग, जिन पुलिस वालों को जो ये आ रही है वो पुलिस वाले गैर मुसल्लह हैं क्योंकि CM का हुक्म है। पंजाब पुलिस का एक और जवान फ़र्ज की राह में शहीद हो गया। रावलपिंडी के इलाके हक्का में शरपसंदों के तशद्दुद से कांस्टेबल मोहम्मद मुबशिर बिलाल शहीद हो गया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का जान का नजराना पेश करने पर कांस्टेबल मोहम्मद मुबशिर बिलाल को खराज तहसीन। उनका कहना था कि पंजाब पुलिस अपने बहादुर शहीद की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगी। और इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस का एक और जवान फर्ज की राह में जो है वो शहीद हो गया है। रावलपिंडी के इलाके में शरपसंदों की शिद्दत से जो है वो कांस्टेबल मोहम्मद मुबशिर बिलाल जो है वो शहीद हो गया। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने फर्ज की राह में जान का नजराना पेश करने वाले कांस्टेबल मोहम्मद मुबशिर बिलाल को खराज तहसीन पेश किया। इस हवाले से आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ये कहना है कि पंजाब पुलिस अपने बहादुर शहीद की कुर्बानी को कभी जो है वो फरमाइश नहीं करेगी। कांस्टेबल मुबशिर की शहादत में मुलव्वस शरपसंदों को कानून के इख्तियार में आज पंजाब कहना है कि लाकर वाकई जो है उनको सजा दिलवाई जाएगी। और पंजाब का इस हवाले से मजीद कहना था कि शहीद कांस्टेबल के अहल खाना की वेलफेयर का हर मुमकिन जो है वो ख्याल रखा जाएगा।
कांस्टेबल मोहम्मद बशीर बलाल का तल्लुक जिला मुजफ्फरगढ़ से है। अशीद के सुगवारन में अहलिया, एक बेटा और 2 बेटियां जो हैं वो शामिल हैं। जी ठीक है, मुदस्सिर इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। तहरीक इंसाफ शरपसंद जमात है, इस पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। करारदाद में ये मुतालबा किया गया है। ये ऐवान तहरीक इंसाफ की जानिब से फेडरेशन पर जत्थों के साथ हमले की मजम्मत करता है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई है और ये करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई है। तहरीक इंसाफ एक शरपसंद जमात है और इस पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद की जाए। सूबाई दारुल हुकूमत में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई का ये मामला है। रास्तों की बंदिश के बाद शहर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। सदर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि 30% पेट्रोल पंप्स खुश्क हो चुके। इंतजामिया पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई के लिए फौरी इकदाम उठाए। और इसी पर बात कर लेते हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। रास्तों की बंदिश के बाद शहर में पेट्रोल व डीजल की सप्लाई जो है वो नहीं हो पा रही। शहर में पेट्रोल डीजल की किल्लत जो है वो सामने आई है और इस वाले से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन लाहौर की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शहर के 30% तक पेट्रोल पंप जो है वो खुश्क हो चुके हैं। सदर लाहौर चौधरी नुमान मजीद का कहना है कि रास्तों की बंदिश से पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई तातुल का शिकार है। इंतजामिया पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल सप्लाई के लिए फौरी इक़दामात जो है वो करे। जिन पेट्रोल पंप पर सप्लाई मौजूद है वो भी महदूद मिकदार में सार्फिन को फरोख्त कर रहे हैं ताकि सेल जो हैं वो बंद ना हो सकें और सेल जो है वो शहरियों को दी जा रही है लेकिन महदूद पेट्रोल दिया जा रहा है। इस हवाले से सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PPDA लाहौर जहांजेब मलिक का कहना है कि अगर आइंदा 24 घंटों में सप्लाई ना खुली तो किल्लत मजीद जो है वो शिद्दत इख्तियार कर सकती है और पेट्रोल पंप पर सेल्स को जारी रखना जो है मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि 2 रोज से सप्लाई जो है वो मुअत्तल है जिसकी वजह से शहर में मौजूद पेट्रोल का स्टॉक जो है वो अब खत्म होता जा रहा है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर एमजाओ चिनफैन की मुलाकात हुई। तरक्याती मंसूबों, मईशत की मजबूती के लिए ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर एमजाओ चिनफैन ने मुलाकात की। ज़राअत, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, डिजिटल डेवलपमेंट पर ताउन बढ़ाने, जलालपुर इरिगेशन प्रोजेक्ट और क्लीन एनर्जी पर गुफ्तगू की गई। एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर एमजाओ चिनफैन ने विमेन एम्पावरमेंट और पंजाब हुकूमत के अवामी फलाही इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज ने एशियाई तरक्याती बैंक की पंजाब के मुख्तलिफ मंसूबों में माली और तकनीकी मुआवनत की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, ADB का ताउन अवाम की खुशहाली और मईशत की बहाली में अहम किरदार अदा कर रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक के साथ मजीद इश्तराके कार पंजाब में तरक्की के मकासद को मजीद तक़वियत देगा। डॉक्टर एमजाओ चिनफैन ने कहा कि एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान खुसूसन पंजाब के साथ ताउन को मजीद वुसअत देने का ख्वाहां है। अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस का कहना है कि पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं। अमरीका पाकिस्तान में ख़वातीन की तरक्की के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर रहा है। जिन्स की बुनियाद पर तशद्दुद के खिलाफ जद्दोजहद का अज़म कौमी इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में 16 रोज़ा आगाही मुहिम शुरू। आगाही मुहिम वुमेन डेवलपमेंट सेंटर और यूनिसेफ के इश्तराक से शुरू की गई। इफ्तिताही तकरीब में अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस, वाइस चांसलर डॉक्टर फलीहा ज़हरा काज़मी और दीगर की शिरकत। तालिबात ने जिन्स की बुनियाद पर तशद्दुद के खिलाफ आगाही के लिए मुख्तसर खेल भी पेश किया। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं। अमरीका पाकिस्तान में ख़वातीन की तरक्की के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर रहा है। States government remains steadfast in its commitment to combating gender-based violence and to supporting survivors, including through partnerships here in Pakistan. For example, we have invested significantly in efforts to enhance the capacity of police across the country, including here in Punjab, to serve their local citizens. वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा ज़हरा काज़मी ने खिताब में कहा कि होमिक इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी तालिबात की सलाहियतों की नशोनुमा पर खुसूसी तवज्जो देती है। तालिबात को पेशा वराना शोबों की महारतें सिखाई जा रही हैं। ये सारा प्लेटफॉर्म फराहम करना हमारा काम है, लेकिन इससे सीखना,
اس سے رزلٹ لے کر جانا آپ کا کام ہے. ہم ایک کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ٹریننگ کر سکیں، لیکن اس ٹریننگ سے بیسٹ جو فائدہ لے سکتا ہے وہ صرف آپ لوگ لے سکتے ہیں. تقریب سے سیکرٹری وومن ڈیولپمنٹ سلمان علی، ڈاکٹر رانا ملک، سینئر صحافی سلمان غنی، سلمان عابد اور دیگر نے بھی تقریب سے خطاب کیا. کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز.